Assalamu alaikum students, welcome in Mathematics Point. Today I'm here with chapter Basic Geometry Exercise 8A question number 6 and this is chapter 10A in all books. Okay? So you have to focus on the name of the chapter because the questions are same. And one thing more, that the students that don't subscribe the channel, kindly subscribe the channel and like the video. So we are moving towards the book and read out the statement with the question we have on the book. Okay, ji, the question number 6 that we have X, Y, Z are three angles laying on a straight line. Okay, part A is if Y is equal to this, Z is equal to this, then find the value of X. First of all, these three angles on a straight line, we have the values of X and Z, but we don't have the value of, we have the value of Y and Z and we don't have the value of X, and we have to find out this value. We draw the figure. Okay, X, Y and Z are on a straight line. So that's mean we have appropriate this type of shape in which we have three angles X, Y and Z. Now the shapes in this angle don't matter because this shape can be in this way because it is also straight line. We have the three angles on it. Now the important thing is that we have the value of Y and the Y is equal to 45 degree. So this is the value of Y we can put here because I don't have the space here. And the next is Z and Z is equal to 86 degree. So we have to find out this X value. Now apply the law of the adjacent that all the angle in a straight line is equal to adjacent angle in a straight line is equal to sum of those angles is equal to 180. So we have the angle X plus Y plus Z, X, Y, Z as they lie on a straight line. So the sum of these angles is equal to 180. We don't know the value of X, so put out the value of Y that we have 45 and then the value of Z is 86 is equal to 180. Okay, just solve this constant. 45 plus 86, this is equal to 131. X is plus 131. On the other side of the equal we have 180. Now shift this 131 on the other side of the equal, it is plus 131, so on the other side will become minus 131. ठीक है, साइन आपके पास इन्वर्स हो जाता है, प्लस माइनस में चला जाएगा. Now X is equal to subtract 131 from 180. 180 minus 131. 131. So this is equal to 49. So the value of 9 we have value of X we have 49. Okay. Now in the part B we have to find out the value of Y. Okay, we have X, value of X and Z, and we have to find out the value of Y. So I'm just solving the question, and now without drawing the diagram I just find out the value of Y. So again, as the three angles lying on a straight line, so that would be X plus Y plus Z. Both three angles lie on a straight line and the sum of all the angles on a straight line is equal to 180. तीनों straight line पे lie करते हैं, X plus Y plus Z. 180 पे सम इक्वल होगा उनका 180 पे, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन एंगल्स है. हम ये प्रॉपर्टी चूज करें दैट ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180. अब वैल्यू हमें x की पता है, x इज इक्वल टू 2y. सो आई जस्ट पुट आउट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी. वैल्यू ऑफ z, y की वैल्यू हमें नहीं पता, सो यू राइट डाउन द y एज इट. z की वैल्यू आपके पास है 3y. ठीक है, बुक में आपको गिवन है x आपकी पास इक्वल है 2y, चाहे तो लिख लो साइड पे. z आपके पास इज इक्वल है 3y और y की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y को ऐसे लिख देंगे 180. अब इसके वेरिएबल सेम है y y y, सो यू हैव टू ऐड द कोफिशिएंट. 2 plus 1 3, 3 plus 3 is equal to 6. So 6y is equal to 180. अब 6 वेरिएबल नहीं चाहिए, कांस्टेंट नहीं चाहिए, सो यू हैव टू डिवाइड दिस कांस्टेंट ऑन बोथ साइड. कटिंग कर दे, 6 1s are 6. So y is equal to 6 1s are 6, 6 3s are 18. y is equal to 30 degree. ठीक है, so this is the answer of the part B or question number 6. Now move towards the part 7, and in the part 7 we have the concept of angle at a point. Okay, now the question number 7 part A, I just draw the figure of this. Now what is the differentiation between the angle at questions of angle at a point and angle on a straight line? Whatever we have the questions angle at a straight line, they have some this type of shape. I am just going to draw the possible shapes that we have. ठीक है, कुछ भी इस तरह से लेकिन स्ट्रेट लाइन में होते हैं.
Now, what are the angle at a point? Angle at a point are those angles that start from a point and make a loop. एक ऐसा एंगल जो कि एक स्टार्ट पॉइंट में बनता है और उसी में एंड होता है. रियल लाइफ में आपके पास देखें बैंगल्स, रिंग, हर राउंड शेप जो आपके पास होती है दैट इज ऑन एंगल बेस्ड ऑन एंगल एट अ पॉइंट, दैट्स मीन 360 का एंगल. एंगल एट अ पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि पूरा एरिया कवर करे, ठीक है, लूप बना दे. लूप क्या होती है? एक पॉइंट से स्टार्ट होना और उसी पॉइंट में एंड कर जाना आपके पास. तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है एंगल एट अ पॉइंट का. एंगल एट अ पॉइंट में हमेशा जितने भी एंगल्स हो, सो व्हेन वी सम अप ऑल द एंगल्स, उन सबको हम एड अप करते हैं, सम अप करते हैं, तो उनका सम किसके इक्वल होता है? 360 के. रियल लाइफ से जो भी आपको राउंड शेप मिले, चाहे वो जिसकी भी शेप हो, राउंड शेप आपके पास राउंड शेप ग्लास की शेप हो सकती है, ऊपर प्लेट राउंड शेप में होती है, ये सारे हमारे पास 360 के एंगल में होते हैं, यानी कि एंगल एट अ पॉइंट की बेस पे अप्लाई करे होते हैं. नाउ वी हैव एंगल एट अ पॉइंट. अगर आप इनको देखें, मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देती हूँ. आपके पास एक एंगल है A, then 135, then 67, then 52. All these things are make a circle. ठीक है, angle at a point. So we have to use the property of angle at a point, that sum of all the angles on angle at a point is equal to 360. So यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है a, so we have to find out this value a. कोई भी एंगल पहले आप लिख सकते हैं, चाहो ये लिख लो, ये लिखो, क्योंकि एडअप होगा. 1 + 2 + 3 लिखें, 3 + 2 + 1 लिखें, आपके पास सोल्यूशन सेम होता है. 67 + 52 + 135. सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इक्वल टू 360. यहाँ पे आप बेशक लिख दें कि आप एंगल एट अ पॉइंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं. नाउ सो यू हैव टू एड अप द कॉन्स्टेंट. हम एडअप कर लेते हैं. 67 + 52 + 135 is equal to 254. नाउ व्हाट इज द अदर रूल? आपने कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करवाना है, ठीक है. 360, ये जो प्लस है ये हो जाएगा -254. एक चीज़ आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इनका सम इक्वल टू 180 करेंगे. स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते तो आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा पूरे का पूरा रो. तो आपके पास ए की वैल्यू क्या है? ए इज इक्वल टू 106 डिग्री. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द ए. हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज के, इसके भी इंशाल्लाह मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी. उसमें हमारे पास सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल है. जो वो एंगल के स्टूडेंट्स आप पेपर्स में मिक्सअप कर देते हो कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री को. सो यू हैव टू प्रैक्टिस हियर कि आपके पास फिर कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है. कन्फ्यूज हम होते ही तब है जब हमारे पास लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है. 4b and the third is 3b. Okay जी, this is the shape of second part B यानी कि second question. or question number 7. Again we have to add up the all the angles. Here we find out the variable b. First angle 5b, second 4b, then 3b. So all the angles sum is equal to 360. क्योंकि आपके पास एक सर्कल बना रहे हैं, पूरा एरिया कवर कर रहे हैं 360 का. नाउ एड अप b coefficient variables are same, so we can add the coefficient. 5 + 4 9, 9 + 3 12, ठीक है. 9 10 11 12. 12b is equal to 360. अब कोफिशिएंट b नहीं चाहिए, सो यू हैव 12 नहीं चाहिए, यू हैव टू डिवाइड 12 ऑन बोथ साइड. सो b is equal to 360 divided by 12. So this is equal to 30 degrees. So the value of b is 30 degree. ठीक है. Now the part C is here we have the angle 16C degree, then 4C, and then here we have the 4C. Here we have just a box. अब आपके पास जो ये एंगल होता है एल शेप, चाहे ऐसे हो किसी भी फॉर्म में हो, ये हमारे पास 90 का एंगल हो तो सारी बॉक्स भी डिक्लेयर कर देता है, ठीक है. राइट, आपके पास राइट एंगल होता है. तो यहाँ पे कोई वैल्यू उन्होंने नहीं लिखी होती है. आप इसको देख लें, शेप को लिख लें, इस बॉक्स को देख लें. ये हमेशा आपके पास जो एंगल होता है राइट ट्रायंगल, ये हमारे पास राइट एंगल हमारे पास किसका होता है? 90 का होता है. सो इस जगह आप खुद से वैल्यू लिखते हो 90. किधर भी मेंशन नहीं होगा, आपको खुद लिखना होगा. नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी. सम अप कर लें. 16c +
प्लस 90 प्लस 4c इज इक्वल टू 360. वेरिएबल्स को ऐड कर लें. 16 प्लस 4 आपके पास 20, देन 24c, इनको हमने ऐड कर लिया. 16 प्लस 4 20 प्लस 4 24c प्लस 90 इज इक्वल टू 360. कॉन्स्टेंट्स को इक्वल के दूसरी तरफ मूव कर दें. 90 इक्वल के दूसरी तरफ मूव होके हो जाएगा -90. देन 24c इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 360 में से -90, सो दिस इज इक्वल टू 270 डिग्री. नाउ 24 कोफिशिएंट है, हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो यू हैव टू डिवाइड द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड. So 270 divided by 24 is equal to, C is equal to 11.25. Okay, so now move towards the part D, the last part of question number 7. Okay, जी part D में we have a diagram ऐसे. यहाँ पे आपके पास एंगल है 270 प्लस 23, 7d प्लस 23 डिग्री. यहाँ पे है 60 एंड 139 एंड हियर वी हैव 5d. अगेन वट एवर द एंगल्स यू हैव, शेप जैसी भी हो, जो भी है, आपके पास एंगल एट अ पॉइंट है, सर्कल बन रहा है, सो यू हैव टू एड अप ऑल द एंगल्स. 60 प्लस 139 प्लस 5d प्लस 7d प्लस 23 इज इक्वल टू 360. जो भी एंगल्स है, जो भी यहाँ पे दे, यू हैव टू एड अप ऑल द थिंग्स एंड सम कीप सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360. आप अपने पास वेरिएबल्स को एड अप कर लें. 16 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 18d प्लस, ओके जी, प्लस 139 प्लस 23, 139 प्लस 23 कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 162. अब इक्वल की दूसरी तरफ से ट्रैक कर लेंगे. 360 माइनस 162, सो दिस इज इक्वल टू 18d इज इक्वल टू 198. ठीक हो गया. अब हमने 18 कोफिशिएंट को बोथ साइड पे डिवाइड कर लेते हैं. सो d is equal to 11. So this is the answer of part D. Okay, now today in this lecture we have done with the question number 6 and question number 7, exercise 8a. The other lectures 8, 9, 10 already uploaded. So I hope so. अब आपको इसमें कोई क्यूरी नहीं होगी. Still अगर आपको कोई भी क्यूरी है, so you can ask in the comment section. So take care yourself. अल्लाह हाफिज़.